Hello. Good morning to all of you. Hope I am audible. Yes, sir. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good morning, everyone. Okay, good morning. Myself, Manish Thakur. I am the assistant professor in mechanical engineering department at Dumka Engineering College, right? Today, I am going to teach you the rolling process, right? That is the part of module 2. And also it is the part of metal forming process, right? So what do you mean by rolling process? Anyone? Have you heard about the rolling process? Sir, it can decrease the thickness of the metal part. Yeah, very good. और कोई एग्जांपल दोगे कोई प्रोडक्ट रोल प्रोडक्ट के बारे में कोई एग्जांपल हैव यू सीन एनी टाइप ऑफ रोल्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट Sir, metal sheets. metal sheets very good metal sheets is used to make different type of product right like utensils जो होता है utensils कहने का मतलब बर्तन होता है that is manufactured by the metal sheets right okay also these metal sheets can be for manufacturing of different type of constructional object or in the applications of boiler manufacturing of boiler railways automotives etc right okay so these are the applications right sheet right okay now just we are going to discuss what is rolling process right the rolling process is also it is the bulk deformations process already I have discussed about the bulk deformations process right the bulk deformations process rolling is also a bulk deformations process the bulk deformation process is what which is used to deform the metal plastically in a large quantity right clear okay so basically what is happening here in the rolling process you peoples are coming late okay so look at the slide here how the rolling can be defined the rolling is a metal forming process in which the thickness of workpiece is reduced by compressive forces exerted by the roll and rotating in the opposite directions right okay so what is the objective here we are having there the objective of to reduce the metal thickness right what is the objective of the rolling का objective क्या है मेरा to reduce the thickness of workpiece clear ठीक है so rolling is the metal forming process in which the thickness of work is reduced by compressive force exerted by the two rolls rotating in the opposite directions right this is the example of flat rolling right ठीक है the different type of rolling can also be there right ठीक है तो another is type of rolling is shape rolling right shape rolling is used to manufacture I beam and L beam right ठीक है so this is the simple type of rolling that is known as flat rolling right have you seen in the kitchen how to make the chapati how Yes, to sir. make the Yes, chapati sir. right ठीक है रोटी कैसे बनाते हैं that is the rolling process right rolling वहां भी रोल करते हैं लेकिन वहां पे रोलर एक ही रहता है एक फ्लैट प्लेट रहता है राइट ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो रोलिंग प्रोसेस को एक्सिक्यूट कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक मिनट ओके दिस इज द रोलिंग हियर राइट ठीक है दिस इज टू रोलर हियर दिस इज द टू रोलर हियर राइट ये दो रोलर हमने लगा रखा है ठीक है एक मेटल शीट हम यहाँ पे क्या है दिस इज द मेटल शीट हैविंग थिकनेस टी नॉट राइट after rolling operations the thickness will be how much t final right this is the thickness right this is the metal how much deformations has been taken here how much deformations has been taken here that is the deformations is what that is t f t sorry t naught minus
पीकेएस रजनीश झा, पीकेएस का नेटवर्क इशू है क्या? टी नॉट माइनस क्या हो जाएगा? टी एफ, एंड दिस इज नोन एज ड्राफ्ट, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि द compressive forces, how the thickness is reduced by the action of compressive forces, and compressive forces is exerted by roller here, which is rotating in the opposite direction. Suppose this is rotating in the counterclockwise direction, and this roller down roller, ठीक है, bottom roller is rotating in the clockwise direction, right? ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? There is a friction, sir. Due to the frictions, the metal flow from left to right here. Clear to everyone or not? And this will take the shape of the gap between these two rollers. Am I right or not? This thickness, TF final thickness, will be the equal to the gap between two rollers. Clear to everyone or not? Clear to everyone or not? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Next is the what is roll, right? What is the functions of roll, right? We'll look here the functions of roll, right? The rotating rolls perform two main functions, right? First is what? Pull the work into the gap between them by friction, right? Friction is where friction is occurred between the स्ट्रिप यदि वर्कपीस एंड रोल सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन लगता है. ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्सेस द मेटल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर टू एवरीवन? Okay, simultaneously excuses the work to reduce the cross sections, right? ये क्या करता है? इसको excuse करता है, right? excuse मतलब दबाना, निचोड़ना, right? ठीक है, तो इसको क्या करता है? ये excuse करके दबा के इसको आपका इसका थिकनेस जो है यहाँ पे TF कर देता है, right? TF is the thickness that is equal to the gap between the two rollers. Clear to everyone? So what is the functions of roller? What is the functions of roller? To pull the work into gap between them by the action of frictional forces. And frictional force acting between the work part and roll surface, between the contact surface, right? Clear to everyone or not? Okay, so there may be different types of rolling process, right? First is flat rolling, right? First is what? Flat rolling, used to reduce the thickness of rectangular cross sections. हमने क्या कहा यहाँ पे कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका यहाँ पे क्या है? थिकनेस टी नॉट था, उसका थिकनेस फाइनल थिकनेस कितना बढ़ा दिया? यहाँ पे TF कर दिया, राइट? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज आवर flat rolling. But whenever you are going to achieve the L type sections, right? L sections or I sections beam, right? I sections beam. Clear? I sections beam देखे हो कि नहीं देखे हो? देखें. ठीक है, रेल देखे हैं? रेल आप लोग? ठीक है, रेल एक्सेट्रा कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय शेप रोलिंग प्रोसेस, राइट? ठीक है, रेल जिस पे ट्रेन चलता है, राइट? रेल रोड, दिस इज यूज shape rolling is used to manufacture this different type of shape geometry. But flat rolling is also flat rolling is only used to reduce the thickness of rectangular cross sections, right? Okay, by the temperature, this is according to the classification of rolling process according to the geometry of the work. Okay, according to the temperature also the rolling process may be classified into the two categories, and that is the hot rolling process and another is cold rolling process, right? Already I have discussed what is hot rolling. Hot rolling, the rolling process which is taken about 0.5 to 0.75 of TM, right? Temperature का किस चीज का? Melting point temperature का. That is when
the process is done, rolling process is done above the recrystallization temperature, then we can say that rolling is hot rolling process, right? Okay. Cold rolling process is what? Cold rolling process is which is taken out at, which is carried out at room temperature, right? Cold process is what? This is at room temperature, right? This is at room सर ये temperature and मेल्टिंग टेम्परेचर ये कौन सा टेम्परेचर है? yeah, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है क्या? टीएम. yes, melting temperature, right? ठीक है, already I have discussed ना कुणाल, हमने क्या कहा था कि कोल्ड वर्किंग में हमने क्या कहा था, याद है? कोल्ड वर्किंग में कितना टेम्परेचर लेते थे हम? रूम टेम्परेचर लेते थे, राइट? ठीक है। वार्म वर्किंग की हम बात करते हैं, वार्म वर्किंग में कितना लेते थे जी? 0.3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल, राइट? एंड हॉट वर्किंग की कंडीशंस में दैट इज अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज 0.5 to 0.75 of Tm. The Tm for melting point temperature of that material. Is it clear or not? ठीक है। So what is the you can define the you can differentiate the term between what is the hot rolling process and cold rolling process, what is the advantage of hot rolling process and cold rolling process, right? ठीक है, similar will be there, right? Similarly already I have told you about the advantage and disadvantage of the cold rolling process and hot rolling process, right? तो उस similarly आपको यहाँ भी लिख देना है वही चीज जो हमने बताया था, right? ठीक है। So these are the difference between these two, that is the hot rolling process and cold rolling process, ठीक है, clear? तो देखो different type of जो ये this is the raw material है, right? From which you can make the shape here. This is the bloom, right? This is what? This is the bloom here, ठीक है। bloom से क्या बना सकते हो? This is the raw material. How the bloom can be manufactured? This is manufactured by casting process, right? कास्टिंग प्रोसेस से ये क्या बनाते हैं? ब्लूम बनाते हैं, राइट? कास्ट करते हैं इसको, राइट? नाउ whenever you are going to make these things, that is the structural shape or rail, right? You have to go for the rolling process, right? ठीक है, तो किस चीज का रोलिंग करेंगे आप? ब्लूम का रोलिंग करेंगे। एंड व्हाट इज ब्लूम? Look at this bloom. It has a square cross sections of 150 mm into 150 mm or more. इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन the cross section will be what? Square in nature. Bloom are rolled into a structural shape like rail or railroad track. Clear or not? ठीक है, this is the rail used to make the railroad track. Clear to everyone? Track बनाने के लिए इसी चीज का यूज करते हैं ना, that is known as roll. Clear to everyone or not? Clear or not? Yes, sir. Another is slab, right? Another is slab. What is slab here? ठीक है, तो it is rolled from bloom. bloom से क्या बनाते हैं? bloom को रोल करने के कारण हम क्या बनाते हैं? ये आपका स्लैब बनाते हैं by using the flat rolling, ठीक है। this can be manufactured by which type of rolling process? that is, क्या बताया था मैंने? shape rolling process, याद है? flat and shape rolling process, right? this can be, this is the shape here, shape rolling process से ये हम बनाते हैं, राइट? ठीक है। अब आपको क्या करना है? स्लैब बनाना था। हाउ टू स्लैब कैन बी मैन्युफैक्चर्ड? देखो जनरली ब्लूम को क्या करते हैं हम? इसका थिकनेस को रिड्यूस कर देते हैं और इसका जो विड्थ है उसको बढ़ा देते हैं, दैट इज द फ्लैट रोलिंग, राइट? फ्लैट रोलिंग किस चीज से करेंगे? ब्लूम को फ्लैट रोलिंग करेंगे तो वी विल गेट द स्लैब हियर, राइट? नाउ स्लैब को अब क्या करेंगे हम? स्लैब को फिर से हम फ्लैट रोलिंग में फ्लैट रोलिंग में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? क्या बनेगा? प्लेट, शीट्स एंड कॉइल कैन बी मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो प्लेट और शीट जो होता है उसी को हम कॉइलिंग करके आप क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी मालगाड़ी देखे हो? ट्रेन जो है, ट्रेन में देखो हो ना इस टाइप का जाते हुए, कभी देखे हो? Yes, sir. देखें। ओके, हाँ ठीक सर। है। तो सीट्स और कॉइल, ठीक है, कॉइल इसका कॉइलिंग करके भेजते हैं, ठीक है। सीट्स और प्लेट का क्या करते हैं? कॉइल फॉर्म में बना के भेजते हैं, उसके बाद यहाँ से काट काट के यूज कर लिए इस्तेमाल होता है, राइट? ठीक है। अनदर इज बिलेट, ठीक है। तो व्हाट इज बिलेट हियर? इट इज रोल्ड फ्रॉम ब्लूम, ठीक है। ये भी कहाँ से बनता है? ब्लूम से ही बनता है। इट इज स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन विथ डायमेंशंस 40 mm ऑन साइड, ठीक है। 40 into 40 होगा और मोर देन दैट,
ठीक है, billet are rolled into bar road, they becomes raw material for machining process, वायर ड्राइंग प्रोसेस, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक्सट्रूशन वायर ड्राइंग, जैसे तार बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तार बनाने के लिए हम बिलेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बिलेट, राइट। ठीक है, बिलेट कैन बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम ब्लूम। ठीक है, ब्लूम से ही बिलेट बनाते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये तो रेक्टेंगुलर हो गया, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर इन नेचर, राइट। ठीक है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, बार बना सकते हैं या रोड बना सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग द रोलिंग प्रोसेस। यहाँ भी क्या होगा, शेप रोलिंग प्रोसेस में हम जाएंगे, राइट। ठीक है, और आफ्टर दैट ये यू कैन मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, वायर बनाना है तो क्या करोगे, ड्राइंग ऑपरेशंस में क्या करोगे, इसका और थिकनेस जो है, थिकनेस क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। यदि ये थिकनेस है तो सिमिलरली आपका वायर में क्या होता है, उस वायर थिकनेस कम कर देते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, वी विल डिस्कस इन द लेटर। होप यू हैव अंडरस्टैंड। Is that clear or not? Please tell me. Okay, now we are going to discuss about the analysis of flat rolling operations, right? What is the flat rolling operations, right? Look at this here. Flat rolling involves rolling of sheet or plates. ठीक है, इसमें क्या किस चीज का रोलिंग करते हैं, either sheet or plates having rectangular cross sections in which width is greater than thickness. कहने का मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेक्टेंगुलर शीट और फ्लैट। इज इट विजिबल और नॉट, वॉट एवर आई एम ड्रॉइंग हियर? Is it visible to all of you or not? Yes, sir. Okay, look at the figure here, right? This is what? This is the sheet or plate, right? ठीक है, तो प्लेट और शीट ये क्या है, दिस इज द विड्थ हियर एंड दिस इज द लेंथ हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ हियर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द थिकनेस हियर, राइट। ठीक है, तो ग्रेटर देन थिकनेस, राइट, विड्थ इज व्हाट, विड्थ इज ग्रेटर देन थिकनेस, यही कह रहा है ना यहाँ पे। द फ्लैट रोलिंग में क्या होता है, फ्लैट रोलिंग इन्वॉल्व्स द रोलिंग ऑफ शीट्स हियर, राइट। इसी चीज का क्या करते हैं, हम रोलिंग करते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस द thickness, right, from T naught to TF, right, clear? ठीक है, having the rectangular cross section in which width is greater than thickness, right? Okay, look at this here. The flat rolling, the thickness is reduced by excusing the rolls, right? Excusing between the two rolls, दो rolls के बीच में जो उसका excusing होता है, that is known as our rolling process। यहाँ पे क्या होता है, दो रोल क्या करता है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करता है, so that we can achieve the product here, right? Thickness less than that of the product here. ठीक है, तो thickness reductions, right? Whatever the thickness has been reduced here, that is known as our draft, already I have told, right? ठीक है, तो जो मेजर किया हमने, जितना भी थिकनेस का रिडक्शन हुआ, दैट इज नोन एज आवर ड्राफ्ट। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आता है ड्राफ्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है, तो ड्राफ्ट कैन बी गिवन, ड्राफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल थिकनेस एंड फाइनल थिकनेस, राइट। टी नॉट माइनस टी एफ इज द फॉर्मूला है, राइट। ठीक है, यहाँ पे कितना कितना रिडक्शन हुआ, ठीक है, कितना रिडक्शन इन थिकनेस हुआ, दैट इज नोन एज आवर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इज व्हाट, the thickness of reductions, how much the reductions in the thickness is quantified as draft, right? ठीक है, तो कितना रिडक्शन हुआ, कितना रिडक्शन हुआ, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, तो कितना रिडक्शन हुआ बताओ जी। यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे टीएफ है, तो टोटल कितना टी नॉट माइनस टीएफ है, इतना रिडक्शन हुआ ना, इतना अपर साइड से, इतना लोअर साइड से रिडक्शन हुआ, राइट। This reduction is quantified by T naught minus TF, right? This is known as draft. Clear to everyone or not? Clear to everyone or not? Yes, sir.
Okay, ठीक है. In the strip rolling, can we write here volume I is equal to volume final, initial volume is equal to final volume लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हेलो, हेलो. Yes, sir. Okay, so initial volume, what is the initial volume? What will be the initial volume as it is the rectangular cross sections? रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम क्या लिखते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी डॉट इनिशियल. इनिशियल क्या था? इनिशियल दैट इज द इनिशियल thickness into initial width into initial length, that will be equal to final thickness into final width into final length. Can we write or not here? यदि किसी को डाउट है तो Yes, पूछो. sir. ठीक है, ओके. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? एल को टी से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव्स यू द वेलोसिटी हियर. यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? also this can be written as t naught into w naught into v naught. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम. this is the velocity v naught and this is the velocity that is the vf, right. ठीक है, vf is the velocity of product and this is the velocity of work here, right. v naught is the velocity, initial velocity, and this is vf is the final velocity. ठीक है, this can also be this is also known as v naught is also known as entry velocity. v naught is also known as entry velocity and vf is also known as exit velocity. Clear to everyone? यहाँ से entry velocity v naught है, exit velocity क्या है? vf है, final velocity. यहाँ तक किसी को डाउट है? सर टी नॉट को टी आई से डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं ना सर? वो तो इनिशियल है तो. हाँ, आप कर सकते हो. देखो, इनिशियल आई से भी करो, ओ से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, पीकेएस का नेटवर्क इशू है बार बार. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए मतलब फिर से बता दीजिए लास्ट में क्या बोल रहे थे. कुणाल, तुम आउट हो गए थे, नेटवर्क इशू है तुम्हारा ना. सर देखो मैं यहाँ पे, नेटवर्क ओके ओके ठीक है. तो यहाँ पे देखो, सिमिलरली जब हम क्या करते थे, हमेशा जो ऑर्जिंग ऑपरेशंस करते थे, तो हम क्या करते थे? इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. यस और नो? इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, राइट. ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो सकता है? टी नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट इंटू एल नॉट. जो स्ट्रिप है या जो भी रो मटेरियल है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, राइट. जो भी सीट है या प्लेट है, ठीक है, तो उसके पास क्या थिकनेस है, विड्थ है एंड लेंथ है. ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, और फाइनल जो स्ट्रिप मेरा जो भी प्लेट आया, ठीक है, जो भी मेरे पास जो प्लेट आया, स्ट्रिप आया, जो भी, ठीक है, सीट आया, उसके पास भी क्या होगा? थिकनेस होगा, विड्थ होगा एंड लेंथ होगा. the volume will be constant because there will be no any losses of volume here. ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो लेंथ है क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ चेंज हो जाएगा. तो देखो, एल नॉट डिवाइडिंग बाई टी दैट विल गिव्स यू द वॉल्यूम वी नॉट एंड एल एफ डिवाइडिंग बाई टी दैट विल गिव्स यू द वॉल्यूम vf. ठीक है, this is known as entry velocity and this is known as exit velocity, right. ठीक है, तो ये किस इंटर कर रहा है? v नॉट से, और एग्जिट क्या कर रहा है? vf से. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट, राइट. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. In the strip rolling, just I am analyzing about the strip rolling, right. ठीक है, strip rolling में क्या करते हैं हम? just thickness घटाते हैं. ठीक है, तो width will not change much after rolling. ठीक है, यदि मान लो हमने क्या लिखा था? L नॉट इंटू, सॉरी, क्या लिखा था? T नॉट इंटू W नॉट इंटू L नॉट, that is equal to that या आपको एक मिनट वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था अभी? इक्वेशंस
T naught into W naught into V naught, that is equal to TF into WF into क्या लिखे थे बताओ, VF, राइट? यही फॉर्मूला था ना, वॉल्यूम कॉन्सिस्टेंसी V1 इज V नॉट इज इक्वल टू VF, राइट? ठीक है, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, राइट? इज द वॉल्यूम, कैपिटल वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यदि W नॉट विल बी इक्वल टू W2, यदि विड्थ दोनों का सेम रहेगा, W नॉट is equal to WF, then can we write here thickness क्या हो रहा है, T naught into V naught, that is equal to TF into VF, right? Okay, look at this here, जैसे क्या कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर, ठीक है? तो थिकनेस क्या हो रहा है यहाँ पे, थिकनेस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? थिकनेस रिड्यूस यदि हो रहा है तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा टू कंपनसेट द वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट? एवरीवन क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यदि थिकनेस घट रहा है यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी? हेलो हेलो, बढ़ेगा अमित, सर। ओके, तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग सब जी? मनदीप, नफीजा, पीकेश, प्रीज, रघुवंश, रवि, आदित्य और नॉट, समोजित, Yes. तुम लोग देखो सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तुम लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी फाइनल जो W1 W नॉट इज इक्वल टू WF यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, T नॉट इंटू V नॉट, दैट इज इक्वल टू TF इंटू VF, ठीक है? एज T जो थिकनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, TF जो है थिकनेस डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पे थिकनेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जस्ट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द thickness in the flat rolling operations, right? So what will be there, the volume should be increased here, ठीक है? To make this constant, right? To make this term constant, the VF should be increased here. So can we write here V naught will be greater, sorry, V naught will be less than VF, yes or no? Yes or no? Entry velocity Yes, will be sir. less than, entry velocity will be less than the exit velocity. बहुत काम आएगा आपको, ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत सारा एग्जाम आता है, एग्जाम में आता है, गेट या कहीं भी, ठीक है? तो एंट्री वेलोसिटी विल बी लेस देन exit velocity, right? ठीक है? So from previous equation it is observed that the exit velocity VF is greater than the entry velocity. हमने कहा ना अभी, exit velocity will be greater than the entry velocity. Clear to everyone or not? Okay, ठीक है? तो अब रोल की बात करते हैं, the roll contact the rolling sheet along an arc defined by angle theta, ठीक है? तो यहाँ देखो, this is look at this figure, नीचे वाला जो यहाँ फिगर दिखा रहा है, ठीक है? इस फिगर में आप ध्यान से देखो, स्लाइड आप लोग को चेंज नहीं हुआ है क्या? हेलो, ओके, हाँ, Yes. ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज द रोलर, दिस इज द रोलर है जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, ठीक है? तो रोल जो है किस रोल थीटा एंगल से क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, किसके साथ करेगा कांटेक्ट, वर्क मटेरियल के साथ, ठीक है? तो रोलर जो है किसके साथ कांटेक्ट कर रहा है, वर्क मटेरियल के साथ, राइट? ठीक है? तो कितना जो आप आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज गिवन बाय थीटा। क्लियर टू एवरीवन? तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो जाएगा ना। यदि रेडियस आर है, रोल का रेडियस आर है, तो कॉन्टेक्ट लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या करते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है? तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, राइट? ठीक है? the roll contact the rolling sheet along the arc defined by the angle theta, ठीक है? this is the contact length, यहाँ से यहाँ तक contact length की हम बात करेंगे तो r into theta हो जाएगा, this is the contact length. Clear? And it has a surface velocity vr,
जो ये जो रोलर है उसका पेरिफेरल वेलोसिटी है। पेरिफेरल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ये जो आपका यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा, कौन सा वेलोसिटी? पेरिफेरल वेलोसिटी ही आर इज इक्वल टू ओमेगा into capital R, where R, capital R is the radius of the roller and omega is the angular motion or angular velocity of the roller. Can be right or not? ठीक है, तो ये जो VR हुआ, this will be in between V naught and VF. ठीक है, तो ये कहाँ लाई करेगा? This is the V naught and this is VR here and this is VF. ठीक है, तो ये जो VR है, peripheral velocity of the roller will be the value of the peripheral velocity of the roller will be between V naught and VF, that is between entry and exit velocity. ठीक है, entry and exit velocity के बीच में ये इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा। क्लियर? तो एक ऐसा जोन आता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने। However, there is one point or zone along the contact arc where work velocity equal to the roll velocity. This is called no slip और न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या हो गया? दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ध्यान से देखिए, जहां पे एन हमने दिखा रखा है, एन इज द न्यूट्रल पॉइंट, राइट? ठीक है, जहां पे क्या हो जाएगा? जो वेलोसिटी हो जाएगा किस चीज का? वर्क मटेरियल का वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द velocity of the roll, velocity of peripheral velocity of the roller. Clear to everyone or not? So what is neutral point? Neutral point is the point along the contact length और arc. ठीक है, इस आर्क पे ही एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां वर्क का वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द रोल वेलोसिटी। क्लियर टू एवरीवन? वर्क वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रोल वेलोसिटी। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes or no? Yes. Please tell me. Okay, तो Yes. दोनों का ओके, तो दोनों का वेलोसिटी यदि बराबर हो जाएगा तो वहां पे कोई स्लिप नहीं होगा ना। दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया तो देयर विल नो एनी स्लिप कंडीशंस ऑकर। ठीक है, स्लिप कब होता है? जब दो सरफेस जो होता है, दो सरफेस के बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस है, यदि वेलोसिटी मान लो v1 है एंड वेलोसिटी v2 है, ठीक है, तो देयर विल बी स्लिपिंग एक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिपिंग कंडीशंस होता है। लेकिन जब न्यूट्रल कंडीशंस की, न्यूट्रल पोजीशंस पे हम बात किया, ये यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर में जाएंगे तो स्लिपिंग होगा, इसके नीचे जाएंगे तो स्लिपिंग होगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑन अनदर आइदर साइड ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, मतलब किसी भी साइड पे लीजिए एक्सेप्ट न्यूट्रल पॉइंट पे, या तो अपर साइड लीजिए या लोअर साइड लीजिए। ठीक है, तो स्लिपिंग एंड फ्रिक्शनल्स ऑकर बिटवीन द रोल एंड सीट। द अमाउंट ऑफ स्लिप the amount of slip between the roll and seat can be quantified by the forward slip। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लिप किधर में लगेगा? इस साइड में फॉरवर्ड स्लिप लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉरवर्ड स्लिप इज इक्वल टू VF माइनस VR डिवाइडिंग बाई VR। VF क्या है? फाइनल वेलोसिटी, राइट? फाइनल वेलोसिटी और एग्जिट वेलोसिटी एंड दिस इज द रोल वेलोसिटी, राइट? रोलर का वेलोसिटी है, दिस इज द रोलर वेलोसिटी। दिस इज द फॉरवर्ड स्लिप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि बैकवर्ड स्लिप की बात करते हैं तो बैकवर्ड स्लिप की बात में, बैकवर्ड स्लिप में क्या करना पड़ेगा बताओ जी? यहाँ पे लिख देंगे VR माइनस VF, सॉरी VR माइनस V डॉट डिवाइडिंग बाय बैकवर्ड स्लिप कैसे होगा सर? और Backward उसी is- को उल्टा डायरेक्शन में चला देंगे तो? बैकवर्ड स्लिप देखो, न्यूट्रल पॉइंट के अपर सेक्शंस में बैकवर्ड स्लिप होगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट के जो अपर सेक्शंस है इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताओ कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है? न्यूट्रल पॉइंट जो है मेरे पास, देखो न्यूट्रल पॉइंट है ना जी, यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे वर्क मटेरियल है, इधर में वर्क मटेरियल है, इधर में रोलर है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है क्या है? VR वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या है? V नॉट वेलोसिटी है। तो V नॉट इज लेस देन VR। ठीक है, V नॉट इज लेस देन VR। ठीक है, तो VR जो है, VR क्या है? VR ज्यादा है यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो ज्यादा वेलोसिटी के कारण देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन दिस टू। इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये स्लिपिंग नेचर होगा। दिस इज नोन एज आवर
बैकवर्ड स्लिप, तो बैकवर्ड स्लिप को हमने बताया ना, बैकवर्ड स्लिप कैलकुलेट करोगे तो वी आर माइनस वी नॉट डिवाइडिंग बाई वी आर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिप है। फॉरवर्ड स्लिप कहने का मतलब क्या हो गया, इस कंडीशंस में क्या